पर बरसा दे, स्वर्गीय वस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीय वस्तु मुझ पर बरसा दे। है पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीय वस्तु मुझ पर बरसा दे। स्तुति અને માન અને મહિમાને યોગ્ય મારા પ્રભુ મેં તમારી પાસે આવીએ છીએ। હા પ્રભુ, દરેકને સમજુ બંધ એકને આંખોને સાંભળતા કાન આપો। અમારી સાથે વાત કરો, વ્યવહાર કરો પ્રભુ, અમને શીખો, અમને સમજાવો પિતા, એનું મહેમાન ઘેર છે। હા પ્રભુ પરમેશ્વર, આજે અમારી સાથે વાત કરો પિતા, પવિત્ર આત્મા। હા પરમેશ્વર, તમે અમને સહાય કરો। આજે તમે અમને જીવો પ્રભુ, એ પ્રમાણે અમે ચાલનારા બનીએ, એ પ્રમાણે અમે કરનારા બનીએ પિતા। પ્રભુ પરમેશ્વર, મારી જીભને મારા હોઠને તમારા રક્તમાં સીલ કરું છું। આ જગ્યાએ તમારા રક્તમાં સીલ કરું છું। હું સગળા તમારા હાથમાં સોંપતા પ્રાર્થના કરું છું। હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા। બધાએ ચા નાસ્તો કર્યો? હા, હાલેલુયા, હાલેલુયા। આવો પ્રભુના વચન તરફ જઈએ। બધા રેડી છો? હા, ચા નાસ્તો કરીને હાલેલુયા, ચા નાસ્તો કરીને રેડી છો? કેમ તૈયાર છો? વચન સાંભળવા। પહેલો રાજા અને તેનું 13મું અધ્યાય। પહેલો રાજા 13મું અધ્યાય અને આપણે એની વાંચીશું 24મી કલમ। અને એ વિદાય થયો, ત્યાર પછી માર્ગમાં એને સિંહ મળ્યો, ને તેણે તેને મારી નાખ્યો, અને એની લાશ માર્ગમાં પડી હતી, ને ગધેડો તેની પાસે ઊભો હતો, સિંહ પણ લાશની પાસે ઊભો હતો। હાલેલુયા, હાલેલુયા। આપણે બેસી જઈએ અને આપણા માટે કોઈ એક વ્યક્તિ વાંચશે 6ઠી કલમથી લઈને 23 કલમ સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિ વાંચશે। રાજાએ ઈશ્વર ભક્તને ઉત્તર આપીને કહ્યું કે તારા દેવ યહોવાની કૃપા માટે આજીજી કરીને મારે માટે પ્રાર્થના કર કે મારો હાથ ફરીથી સાજો થા। અને ઈશ્વર ભક્ત યહોવાની આજીજી કરી, એટલે રાજાનો હાથ સાજો થઈને અગાઉના જેવા થઈ ગયો। પછી રાજાએ તે ઈશ્વર ભક્તને કહ્યું કે મારી સાથે ઘેર આવીને હાજરી કર, ને હું તને ઇનામ આપીશ। ઈશ્વર ભક્તે રાજાને કહ્યું કે તું મને તારું અડધું ઘર આપે તો પણ હું તારી સાથે નહીં આવું, ને આ જગા રોટલી પણ નહીં ખાઉં, તે પાણી પણ નહીં પીવું, કેમ કે યહોવાના વચનથી મને એવી આજ્ઞા મળી છે કે ત્યાં તારે કંઈ પણ રોટલી ખાવી નહીં, કે પાણી પીવું નહીં, તેમજ જે માર્ગે તું ગયો હોય તે માર્ગે થઈને પાછું વળવું નહીં। આથી તે બીજે માર્ગે ચાલ્યો ગયો, ને જે માર્ગે તે બેથેલ આવ્યો તે માર્ગે તે પાછો ગયો નહીં। હવે બેથેલમાં એક વૃદ્ધ પ્રબોધક રહેતો હતો, અને તેના એક દીકરાએ આવીને તે ઈશ્વર ભક્તે તે દિવસે બેથેલમાં જે સર્વ કૃત્યો કર્યા હતા તે તેને કહી સંભળાવ્યા। જે શબ્દો તેને રાજાને કહ્યા હતા તે પણ તેઓએ પોતાના બાપને કહી સંભળાવ્યા। તેઓના બાપે તેમને કહ્યું કે તે કયે માર્ગે ગયો। હવે યહૂદિયામાંથી આવેલો ઈશ્વર ભક્ત કયે માર્ગે ગયો હતો તે તેના દીકરાઓએ જોયો હતો। તેણે પોતાના દીકરાઓને કહ્યું કે મારે સારું ગધેડા પર જીન બાંધો। તેથી તેઓએ તેને સારું ગધેડા પર જીન બાંધ્યું, અને તે એના પર બેઠો, અને તે ઈશ્વર ભક્તની પાછળ ગયો। તે તેને આલમરૂપ સ્થળે બેઠેલો મળ્યો। તેણે એને પૂછ્યું
કે યહૂદિયામાંથી આવેલો ઈશ્વર ભક્ત તે શું તું છે? એણે કહ્યું કે હું તે છું. ત્યારે તેણે કહ્યું કે મારી સાથે ઘેર ચાલે રોટલી ખા. એણે કહ્યું કે હું તારી સાથે પાછો નહીં આવું ને તારા ઘરમાં નહીં જાઉં. તેમજ હું આ જગાએ તારી સાથે રોટલી પણ નહીં ખાઉં કે પાણી પણ નહીં પીઉં. કેમ કે યહોવાના વચનથી મને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ત્યાં તારે રોટલી ખાવી નહીં ને પાણી પીવું નહીં ને જે માર્ગે તું ગયો હોય તે પર પાછું વળતા તારે ચાલવું નહીં. પછી તેણે તેને કહ્યું કે હું પણ તારી માફક પ્રબોધક છું અને યહોવાના કહેવાથી એક દૂતે મને કહ્યું કે એને તારી સાથે ઘેર પાછો તેડી લાવ કે તે રોટલી ખાય ને પાણી પીવે. પણ તે એને જૂઠું કહેતો હતો. આથી તેણે તેની સાથે પાછા જઈને તેના ઘરમાં રોટલી ખાધી ને પાણી પીધું. તેઓ ભાડા પર બેઠા હતા. એટલામાં એમ થયું કે એને પાછો લઈ આવનાર પ્રબોધક પાસે યહોવાનું વચન આવ્યું. તેણે યહૂદિયામાંથી આવેલા ઈશ્વર ભક્તને પોકારીને કહ્યું કે યહોવા આમ કહે છે કે તે યહોવાના વચન સામે બંધ કર્યું છે ને તારા દેવ યહોવાએ જે આજ્ઞા તને ફરમાવી તે પાડી નથી. પણ તું પાછો આવ્યો ને જે જગા વિશે તેણે તને કહ્યું હતું કે ત્યાં રોટલી ન ખાતો તે પાણી ન પીતો તેમાં તે રોટલી ખાધી કે પાણી પીધું છે. માટે તારી લાશ તારા પિતૃઓની કબરમાં જવા પામશે નહીં. એણે રોટલી ખાધી ને પાણી પીધું. ત્યાર પછી એમ થયું કે તેણે એને માટે એટલે જે પ્રબોધકને તે પાછો વાળી લાવ્યો હતો તેને માટે ગધેડા પર જીન બાંધ્યું અને એ વિદાય થયો. ત્યાર પછી માર્ગમાં એને સિંહ મળ્યો ને તેણે એને મારી નાખ્યો અને તેની લાશ માર્ગમાં પડી હતી. ગધેડો તેની પાસે ઊભો હતો, સિંહ પણ લાશની પાસે ઊભો હતો. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. અહીંયા આપણે જોઈએ છે એની અંદર આ સ્ટોરીની અંદર એક પ્રબોધક હોય છે. प्रबोधक कोने कहवाय? જે ભવિષ્ય जो नबी होते हैं, नबी यानी कि वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? परमेश्वर की बातें, लेकिन क्या परमेश्वर की बातें बताते हैं? सही बातें, हालेलुया। यानी पुराने नियम में परमेश्वर अपने जो नबी थे ना, उसके जो प्रबोधक थे, उसके जो भक्त थे प्रबोधक, उनसे बात करते थे और उनसे बात जब करते थे वो बातें उनको जिसके लिए थी उनको जाकर बतानी होती थी। परमेश्वर उनसे बात करता था और वो बातें उनको क्या करनी थी? बतानी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के जो दास है, परमेश्वर के जो नबी है, उनसे परमेश्वर बात करता है और वो लोग परमेश्वर की बातें बताते हैं। यानी जो होने वाला है ना, जो होने वाला है वो प्रकट करते हैं। आपने किसी को कोई ऐसे नबी को देखा है या सुना है जो कोई भविष्यवाणी करता है? वो कहाँ भविष्यवाणी करते हैं? जो भविष्यवाणी करता है ऐसे को देखा है परमेश्वर के दास को? यानी आपको पता है कि इन्होंने ये भविष्यवाणी किया था और वो पूरी हुई। जैसे बाइबल में हम देखते हैं यशायाह ने लिखा है कि कुंवारी के पेट से बच्चा पैदा होगा तो यीशु मसीह आया ना, उन्होंने ये बताया वैसा हुआ है ना, हुआ ना। जब जो हम पुराना नियम पढ़ते हैं, जो जो भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं, जो बातें बताई गई है, फिर नए नियम में भी हम सुनते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा ना, जब चेलों ने पूछा कि आपके आने का क्या चिन्ह होगा, तो यीशु मसीह ने कहा ये घड़ी है कोई जानता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जब लिखा है मार्थी ने लिखा है 24वें अध्याय के अंदर कि धरती कम होगा, ये होगा, तो वो क्या हुई? क्या हुई? भविष्यवाणी हुई ना। ऐसे ही परमेश्वर के दास है जो जब वो परमेश्वर की हजूर में जाते हैं, जो सच्चे हैं,
जो सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी हजूर में जब बैठते हैं तो परमेश्वर अपने अपने दासों से बात करता है, वो उनको बताता है। और वो क्या करते हैं, जो होने वाला है, जिनको बताना है उनको बताता है। हालेलुया। तो पूरे पुराने नियम के अंदर जब राजा थे ना, दाऊद जब परमेश्वर की सलाह पूछते थे तो उनको नाथान प्रबोधक आकर क्या करते थे, बताते थे ना कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, वो सारी बातें उनको देते थे। ऐसे ही राजा थे, बहुत सारे लोग थे, वो परमेश्वर की सलाह किससे पूछते थे, प्रबोधकों से। किससे? प्रबोधकों से। तो आपको पता है ना प्रबोधक होते हैं, वो तो पता है ना? हाँ। क्या नहीं है? हाँ। हालेलुया। तो समझना ये है कि यहाँ पे भी प्रबोधक था। कौन था? प्रबोधक था। परमेश्वर ने उनको कहा कि तुझे जाना है ये जगह पे, और ये जगह पे इस राजा के पास जाना है, प्रार्थना करना है, मैंने तुझे जो जो बताया है वो उसको बताना है। लेकिन अभी क्या करना है तुझे, तू जिस रास्ते से गया है ना उस रास्ते से वापस नहीं आना है, तुझे जाना है, उसको बताना है, लेकिन दूसरे रास्ते से आना है। ना वहाँ कुछ खाना है ना कुछ पीना है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने तुझे जिस वचन के लिए भेजा है, मैंने जिस बात के लिए तुझे भेजा है, वो ही वहाँ पे प्रकट करना है और वापस आ जाना है। ये किसकी वाणी थी? यहोवा परमेश्वर की थी। यहोवा परमेश्वर ने इस बात को उनको बताया, उस प्रबोधक को बताया कि तुझे जाकर ये सारी बातें कहनी है और आ जाना है, उस रास्ते पे वापस नहीं आना है, वहाँ खाना खाना नहीं है, पानी पीना नहीं है, ये चीज करना नहीं है। लेकिन क्या होता है, वो बताता भी है, बहुत अच्छे से बातें भी करता है। जब राजा उसको कहता है, वो कहता है मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मैं खाना खाऊंगा नहीं, मैं पानी पीऊंगा नहीं। हाँ, वहां से वो निकल जाता है, दूसरे रास्ते से जाता है। कहाँ से? दूसरे रास्ते से। ये परमेश्वर का दास था। कौन था? परमेश्वर का दास। परमेश्वर उससे बात करता था, परमेश्वर उनसे बताता था, वही सारी बातें वो जो जिसको परमेश्वर कहता था उसको वो कहता था ना। परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर चलने वाला दास था। परमेश्वर उनसे ही बात करता है ना, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। तो ये परमेश्वर का दास था, बहुत अच्छी से परमेश्वर के अंदर चल रहा था। जैसे परमेश्वर ने बताया वो वैसे ही उसने किया। राजा के महल में भी नहीं रुका, है ना। राजा ने कहा, क्या कहा, बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पे। सुखी तो सातवीं कलम पढ़ना। राजा ने क्या कहा? अब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। हालेलुया। गुजराती में बहुत अच्छा लिखा है। પછી રાજાએ તે ઈશ્વર ભક્તને કહ્યું કે મારી સાથે ઘેર આવીને હાજરી કર ને હું તને ઇનામ આપીશ। हालेलुया। हालेलुया। क्या दूंगा? इनाम। इनाम भी दूंगा। इनाम के लिए तो सब लोग भागते हैं ना, भागते हैं ना। राजा ने तो इस प्रबोधक को कहा कि मैं तुझे क्या दूंगा? इनाम दूंगा, तू मेरे घर पे आ जा, मेरे साथ चल। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे परमेश्वर की ये वाणी है, मैं ना कुछ खाऊंगा, ना मैं कुछ पीऊंगा, ना मैं इस रास्ते से जाऊंगा, मैं दूसरे रास्ते से होकर जाऊंगा। ये मेरे परमेश्वर की वाणी है। जब ये चला, अच्छे से चला ना, राजा ने कहा इनाम भी मिलेगा। वो अच्छे से चला, बहुत अच्छे से चला। हालेलुया। जो गया बताया सब कुछ अच्छा था। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर ने चुना है। हम भी परमेश्वर के लोग हैं, हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। जब हम परमेश्वर के अंदर चलते हैं तो परमेश्वर का वचन जो हमारे पास आता है उसी हिसाब से हमें चलना है। हालेलुया। क्या करना है? उसी हिसाब से हमें चलना है। किसने बताया है? लेकिन परमेश्वर ने जो बताया है
आकर बताता है तो नहीं सुनना है। परमेश्वर ने आपसे जो वचन के द्वारा जो बातें किया है, जो वेदों को प्रकट किया है, जिस बात को बताया, जो आज्ञाएं दिया है, परमेश्वर ने जो जो आपको कही है वो सारी आपको माननी है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने उनसे ये बातें बताई थी। जब उन्होंने ये सारी बातों को किया, वो चले, वहां पे बीच में एक और प्रबोधक आया। कौन आया? और एक प्रबोधक आया। उसने कहा, मुझे यहोवा ने कहा है तू मेरे संग चल। क्या कर? मेरे संग चल, मेरे घर आ। वो क्या करता है? उसको मिलने के लिए जाता है। वो उसको मिलकर क्या कहता है? मेरे घर चल। उस प्रबोधक ने कहा, मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, ना मैं तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दिया है। मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है कि वहां पे कुछ खाना पीना नहीं है। जिस मार्ग से तू गया है उसी मार्ग से तुझे वापस आना नहीं है, दूसरे मार्ग से तुझे आना है। मेरे परमेश्वर ने यही बात मुझे बताई है। वो प्रबोधक वो कहता है, मैं भी एक प्रबोधक हूँ। क्या है? मैं भी एक प्रबोधक हूँ। मैं परमेश्वर की वाणी मुझ पर आई है और उसने मुझे बताया है कि तू मेरे संग घर जा। क्या कर? उसने उसकी बात को मान लिया और मान कर वो क्या किया? उसके घर पर हो लिया। जब उसके घर पर वो गया, उसके साथ बैठा खाने के लिए, तब सही में परमेश्वर की वाणी आई और परमेश्वर ने कहा, अभी तूने क्या किया है? गलत किया है। मैंने तुझे मना किया था, लेकिन तूने क्या किया? यहाँ पे वापस आया, खाना खाया और अभी क्या होगा? तू मृत्यु को पाएगा। क्या पाएगा? मृत्यु को। ये वाणी उस प्रबोधक के पास कब आई? झूठे प्रबोधक ना, वो झूठा बोला। वो प्रबोधक क्या बोला? झूठ बोला और उसको उस मार्ग से जो सही रीति से चल रहा था, वो तो चला गया था ना आगे, वो सही रीति से चल रहा था, तब वहां से वापस भटकाने के लिए उस रास्ते से, उस आज्ञाओं से परमेश्वर की और नजीक जाते हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करे, इसके लिए वो आकर उसको क्या किया? हटा दिया। वो वहां पे उसको परमेश्वर की सलाह पूछनी थी। उसको वहां पे परमेश्वर से पूछना था कि परमेश्वर मैं करूँ या ना जाऊं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने तो मुझे पहले से ही कह दिया था। लेकिन वहां पे भी प्रबोधक आकर उसको क्या कहता है कि मेरे संग बोले, और ये गया और वो मृत्यु को पाया। नहीं, जब उसने परमेश्वर ने जो कहा इस हिसाब से नहीं किया तो मृत्यु तो उस पे आई। क्या आई? मृत्यु। ऐसे ही हम इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर चल रहे हैं ना, इस जगत के अंदर चल रहे हैं। ये जगत क्या है? दुष्ट की सत्ता में है ना, अंधकार से भरा हुआ है, ये उसके अंदर पड़ा हुआ है और ये इसके अंदर हम रहते हैं। हम कौन? परमेश्वर के लोग रहते हैं और उसके अंदर जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो वहां से परमेश्वर से हटाने के लिए, परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए बहुत जुटे लोग आएंगे। कौन आएंगे? बहुत जुटे लोग आएंगे जो कहेंगे मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर की बातें करता हूँ, मुझसे परमेश्वर बात करता है, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग जो आपको आज्ञा का पालन नहीं करने देगा, आपको परमेश्वर ने जो कहा इस हिसाब से चलने नहीं देगा और बहुत ऐसी झूठी बातों को आपके माइंड में डालकर आपको परमेश्वर के मार्ग से हटा देगा। क्या करेगा? हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब एक रेस के अंदर चल रहे हैं। किसमें? एक दौड़ के अंदर हम दौड़ रहे हैं। किसमें दौड़ रहे हैं? दौड़ के अंदर हम सब है, बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर दौड़ रहे हैं, लेकिन इनाम तो किसको
किसको मिलता है? एक को एक को। ऐसे ही हम सब दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन इनाम किसको मिलेगा? एक को ही। हालेलुया। लेकिन वो कि कैसा होगा? जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसकी इच्छाओं के अनुसार चलकर, हाँ, उसने जो कहा है ऐसे जीवन बिताते हुए वो चलेगा तब। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे चलना है, परमेश्वर ने जिस मार्ग में चलना कहा है वही मार्ग पर हमें चलना है। दूसरी बार वापस यदि परमेश्वर ने कहा है कि पीछे मत मुड़ो, तो पीछे मुड़ना नहीं और वही रास्ते पे वापस जाना नहीं है। तुम आगे निकल गए हो तो तुम दौड़ो। क्या करो? दौड़ो, लेकिन पीछे मत मुड़ो। पीछे मत मुड़ो। पीछे क्या है? मौत। क्या है? मौत है पीछे, मृत्यु है पीछे। हाँ, जब हमने हमारे पापों को कबूल किया तो उसको क्या किया? छोड़ दिया। यानी हमने जैसे चल रहे थे ना, तो हमने यूटर्न ले लिया, यानी हमने बदल दिया मार्ग को। हम पाप में चल रहे थे, उसको छोड़कर हम पवित्र जीवन के अंदर जी रहे हैं। हम पवित्रता के अंदर चल रहे हैं। किसमें? पवित्रता के अंदर। अब यदि मैं इसको छोड़कर पीछे जाऊंगा तो मेरे लिए क्या है? मृत्यु है, क्योंकि पाप क्या है? मृत्यु ही है ना? हमने पढ़ा था ना, सीखा था हमने गुरुवार को कि मृत्यु है। वो मृत्यु मुझे क्या कर लेगी? पकड़ लेगी, पकड़ लेगी। पाप यानी मृत्यु न, वो मुझे पकड़ लेगी तो मैं तो मर जाऊंगा, मृत्यु पाऊंगा। तो मैं अभी चल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? चल रहा हूँ। जब चल रहा हूँ मैं परमेश्वर के अंदर, तो पहली बात ये है कि मुझे जो यहोवा ने यानी मेरे परमेश्वर ने मुझे इसमें से जो दिया है, जो बातें मुझे परमेश्वर ने दिया है, जो बातें आज्ञाएं परमेश्वर ने मुझे सिखाई है, जो उसने मुझसे कहा है, उसके हिसाब से मैं चलता रहूं। क्या करूं? चलता रहूं। ऐसे ऐसे ना मुड़ूं, लेकिन क्या करूं? चलता रहूं। चलना है, और चलना ऐसा है कि आप अकेले नहीं, उसमें बहुत सारे लोग हैं और उसके अंदर आपको भी अच्छाई से, खराई से होकर दौड़ना है, चलना है। सीधी चाल चलना है, सीधे चलो, न्याय से चलो परमेश्वर के अंदर। आप पवित्रता से परमेश्वर के अंदर चलो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आप चलो। जब ये प्रबोधक गया, उससे मिला, उससे बात किया, है ना, उसने कहा मेरे घर चल, उसको नहीं जाना था लेकिन वो गया। हम भी ऐसे है, जब परमेश्वर के अंदर चलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ये कर लो, वो कर लो, हम करने लगते हैं। हम क्या करते हैं? करने लगते हैं। कुछ ऐसा कर लो तो अच्छा हो जाएगा, वे कर लो तो अच्छा हो जाएगा, ये परमेश्वर ने कहा, ये परमेश्वर ने कहा। ऐसी बहुत सारी बातें बता कर कहने वाले लोग आते हैं और हमें क्या करते हैं? हम जो दौड़ रहे हैं, हम जो रेस के अंदर है, उसमें से वो हमें हटा रहे हैं। याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है कि मेरे परमेश्वर की वाणी है। किसकी है? मेरे परमेश्वर की वाणी है। मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो मैं वही करूंगा, वो इसी हिसाब से चलूंगा। मैं दाहिने बाइने नहीं जाऊंगा, ना ही मैं पीछे हटूंगा, ना ही मैं पीछे मुड़ूंगा। मुझे तो वो दौड़ना है, वहां तक दौड़ना है, उस जगह पे पहुंचना है और वहां से मुझे इनाम को लेना है। क्या लेना है? इनाम को लेना है। इनाम को लेने के लिए हमें अच्छी दौड़ दौड़ना है। हालेलुया। क्या करना है? अच्छी दौड़ दौड़ना है। लेकिन याद रखना, अभी आप परमेश्वर के अंदर है तो हमें भुला देने वाले, परमेश्वर के मार्ग से भटका देने वाले, भुला देने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है वो भी कैसे होंगे?
एक घेटे के समान, है ना, वैसा ही रूप लेकर आएंगे। वो कोई राक्षस बनकर नहीं आएगा, ना ही कोई ऐसा दिखावा लेकर आएगा, लेकिन वो भी ऐसा होगा कि वो एक घेटा है, ऐसा ही बनकर वो आएगा, लेकिन वो उसके भेष में तो क्या होगा, भेड़िया होगा ना। उसका जो रूप है वो घेटे का तो होगा, लेकिन उसके अंदर तो एक गंदा इंसान होगा जो हमें परमेश्वर के मार्ग से हटा देगा। क्या करेगा, हटा देगा। इसके लिए इसको परमेश्वर ने दिया है, उसको अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि लास्ट दिनों के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे। कौन आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। वो कहेगा मैं परमेश्वर का हूँ, वो कहेगा मैं परमेश्वर का हूँ, वो कहेगा मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो चिन्ह करेंगे, वो चमत्कार करेंगे, वो दिखाएंगे बड़ी बड़ी बातों को। हालेलुया, हालेलुया। जो सही में परमेश्वर का दास है उसके विरुद्ध में हमें कभी नहीं बोलना है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है ऐसे लोग आएंगे अंतिम दिनों के अंदर, जब आप अच्छे से चाल चल रहे होंगे, अच्छे से दौड़ रहे होंगे, वो आकर आपको भटका देंगे। क्या करेंगे, भटका देंगे। वो चिन्ह करके दिखाएंगे, वो बड़ी बड़ी ऐसी काम करके दिखाएंगे जैसे मनुष्य को लगेगा कि नहीं सही में यही है, और परमेश्वर के अंदर हम अच्छे से चलते हुए हम उस तरफ चले जाएंगे। उसके लिए पौलुस बहुत अच्छी बात गलाती में कहते हैं कि हमने जो सुसमाचार आपको सुनाया है ना, उसको छोड़कर आप दूसरी ओर चले गए तो वो क्या होगा, श्रापित हो जाएगा। पौलुस कहता है ना, તમને કોણે ભમાવ્યા, ગુજરાતીમાં કહે છે તમને કોણે ભમાવ્યા, ના કોણે ભમાવ્યા। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों के अंदर हमें बहुत ऐसे रहना है, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, परमेश्वर के अंदर बहुत अच्छे से चाल चलना है। ऐसे ही नहीं जीवन जीना है, ऐसे ही हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जो हमने अभी जो देखा स्टोरी, उसके अंदर भी प्रबोधक था, परमेश्वर ने जैसे कहा उसने किया, लेकिन जब वो चल रहा था वो कार्य खत्म भी किया, लेकिन जब परमेश्वर ने किया वो पूरा भी किया और वो आगे निकला और वहां पे आकर उसको भटका दिया, वो मृत्यु को पाया। क्या पाया, मृत्यु को पाया है। याद रखो, हालेलुया, हालेलुया। ये भी बोला मैं परमेश्वर का दास हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा है वो क्या था, झूठा था, वो झूठ बोल रहा था। क्या कर रहा था, 20वीं आयत में लिखा है कि वो पढ़ना 20 समय તેઓ ભાડા પર બેઠા હતા, એટલામાં એમ થયું કે એને પાછું લઈ આવનાર પ્રબોધક પાસે। પછી તેણે એને કહ્યું કે હું પણ તારી માફક પ્રબોધક છું, અને યહોવાના કહેવાથી એક દૂતે મને કહ્યું કે મેં તારી સાથે તારા ઘેર પાછું તેડી લાવજે, તે રોટલી ખાય ને પાણી પીએ। પણ તે એને જૂઠું કહેતો હતો। हालेलुया, हालेलुया। वो उसको क्या कह रहा था, झूठ बोल रहा था, यानी झूठ बात उसको बता रहा था ना। मुझे किसने कहा है, परमेश्वर ने। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, वो कहेंगे मुझे परमेश्वर ने कहा है, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मुझे परमेश्वर ने ये सामर्थ्य दिया है, ये अभिषेक परमेश्वर ने दिया है। ऐसे झूठ बोलने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। तब आपको, यदि आपने उसकी बातों को सुन लिया, तो आप जो अच्छे से परमेश्वर के अंदर दौड़ रहे उसमें से आप भटक जाओगे। क्या होगा, भटक जाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, वचन को अच्छे से पढ़कर समझना भी है। हालेलुया, पढ़ना है और समझना भी है। पहले परमेश्वर ने जो कहा है उस हिसाब से चलना तो है ही, क्योंकि ये वचन किसका है, परमेश्वर का है।
आपको उसमें अच्छे से चलना है। हालेलुया। इसके लिए लिखा है, मार्की में हम निकालेंगे, हालेलुया। हालेलुया। 7वां अध्याय मार्की 7 અને 15। જે શીખાઉ ઉપદેશકો ઘેટાને વિશે તમારી પાસે આવે છે પણ માએ ફાડી કાઢનારા વરુણા જેવા છે તો સંબંધી સાવધાન રહો। हालेलुया। 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 अब ये परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? हिंदी में पढ़ो सिस्टर। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। 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 क्या कहा परमेश्वर का वचन कि वो अंदर से कैसे है? भेड़िए है, फाड़ डालने वाले भेड़िए है। वो कहेंगे चलेगा, आज्ञाओं का पालन मत करो, चलेगा, चलेगा, संडे चर्च में ना हो, चलेगा, संगति में ना हो, चलेगा, प्रार्थनाएं ना करो, चलेगा, फास्टिंग ना करो, चलेगा, हाँ अपने हिसाब से चलो, चलेगा, वो सारी बातें बताएगा। क्या कहेगा? वही जैसे मनुष्य को जीवन जीना है ऐसे ही वो जीने देगा। क्या करेगा? जीने देगा। वो कहेगा मैं चुना हुआ हूँ, मैं आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, फिर भी देखो मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। वो ही बात बताएगा, वो ही समझाएगा, वो ही सिखाएगा, क्योंकि वो दिखता तो क्या है? सीप है ना। क्या दिखता है? अच्छा वाला मेमना दिखता है, अच्छा वाला, हाँ, लेकिन वो दिखता है, लेकिन उसके अंदर, उसके भीतर तो ऐसा है। जब उसके पास आप जाओगे, आप क्या होगे? मर जाओगे, क्योंकि उसके अंदर तो वो भेड़िया है। भेड़िया क्या करता है? फाड़ डालता है, मार डालता है। तो इन दिनों के अंदर हमें परमेश्वर के दासों को, हालेलुया, परमेश्वर को, लोगों को जानना और समझना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या जरूरी है? जानना और समझना। हम कहीं कहीं भटके नहीं, यहीं वहीं चले जाए नहीं, जो आए उसने बताया उसी को मानकर चलने लगे नहीं, नहीं तो पीछे क्या है? मृत्यु है। पीछे क्या है? मृत्यु है। वो आपको पीछे ही खींचेगा, आगे ले जाने वाला नहीं होगा। वो आपको दिखाएगा मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा, लेकिन आगे ले जाने वाला नहीं है। वो कहाँ पे? पीछे ले जाने वाला है। उसके लिए सावधान हो जाओ। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे? सावध रहो। हालेलुया। क्या रहो? सावध। ऐसे लोगों से सावध रहो जो मीठी मीठी बातें करते हैं। आपसे तो मीठी मीठी बातें करेंगे, हाँ, आपसे इतना प्रेम जताएंगे, इतना प्रेम जताएंगे, इतना आप लोग भी ओ मुझे तो कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है ना। आपको तो ऐसा लगेगा कि ये मुझे प्रेम करता है, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा ये तो मुझे आज्ञा से भटका रहा है ना। इसको तो मेरी दर्द का पता है, ये तो कहता है बैठ जाओ ना, वर्शिप ना करो, बैठ जाओ, इसको मेरे दर्द का पता है कि खड़ा नहीं करता है, वो मुझे प्रेम करता है, हाँ, क्या है, मुझे खाना खिलाता है, वो मुझे प्रेम करता है, उसको मेरी नहीं चिंता है। बहुत सारी बातें करेगा और चिन्ह भी करेगा और चमत्कार भी करेगा। हालेलुया। और ऐसा दिखावा भी करेगा, उस प्रेम का दिखावा भी करेगा। इसने भी तो किया ना, इस प्रबोधक ने खाना भी खिलाया, घर पे भी ले गया ना, ऐसे ही खाना भी खिलाएगा, क्योंकि उसको आपको क्या करना है? फाड़ना तो है ही ना। तो क्या करेगा? खाना भी खिलाएगा, अच्छा वाला खाना खिलाएगा। देखो देखो ये देखो, ये परमेश्वर का वचन कहता है, उसके मुंह से तो इतने अच्छे वचन निकलेंगे,
अरे इस परमेश्वर के वचन भी इतने अच्छे अच्छे उसको आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो खाना भी खिलाएगा, ये भी खिलाएगा, आपको तो ऐसा लगेगा बहुत अच्छा है। हालेलुया। 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 जब यीशु मसीह से जब शैतान ने बात किया ना, तो कैसे किया? લખેલું છે માણસ એકલી રોટલી થી નહીં ને, અને પણ વચનથી જીવશે કે છે ને, પછી કે છે લખેલું છે કે દૂતો આવીને તને ધરી લેશે। પ્રભુએ બી એના વચનથી વાત કરી, એને બી શું કર્યું? પ્રભુની સાથે ઈશ્વરની સાથે કેવી રીતે વાત કરી? લખેલું છે તું અહીંથી પડીશ ને તો દૂતો આવશે ને, અને પછી કે છે તને શું કરશે? પકડી લેશે। તું એ સારી વાત તો कर रहा था ना, બધું તને આપીશ। परमेश्वर ने अच्छी से परमेश्वर ने उसको सारी बात के वचन से ही समझा। हालेलुया। वो भी वो जानता था, वही बात वो कह रहा था कि दूत आवશે ને તને છારી લેશે અને પકડી લેશે। हालेलुया। वो सारी बात वो बता रहा था, समझा रहा था, लेकिन परमेश्वर को पता था इस मसीह को, हाँ, इसके लिए वो उसके जाल में नहीं आएंगे। हालेलुया। लेकिन वो तो सब कुछ परमेश्वर जाने वाला है। इस मसीह ने बहुत अच्छे से उनको आंसर दिया, लेकिन हम क्या है यहाँ पे यदि चल रहे हैं, हम बहुत सारी बातों को देखते हैं, तो हम कभी कभी उसकी बातों को मान भी लेते हैं। जैसे इस प्रबोधक ने मान कर मृत्यु को पाया, ऐसे ही हम बात लेते हैं। लेकिन हम आगे देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, आगे पढ़ेंगे हम 17, 15, 16, 17 उनके फलों से तुम्हें इन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार का एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार इनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। 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 अभी हमको पहचानना है। हमने ये समझा कि आएंगे बहुत सारे लोग परमेश्वर के मार्ग में से भटकाने वाले, हम अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से चाल चल रहे हैं, लेकिन हमें मौत की ओर ले जाने वाले लोग आएंगे। लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे? हालेलुया। हालेलुया। हम उनको पहचानेंगे कैसे? तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तेओना फळથી તમે તેઓને ઓળખશો। तुम उनके फलों से तुम उनको पहचान पाओगे। हालेलुया। 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 जब भी हमने पहली यदि 15 हमने पढ़ी है, 15 आयत को यदि हमने पढ़ी है, तो वहाँ पे क्या लिखा है? जे जूठा उपदेशको भेटानो बेसे तुम्हारी पास से आवશે। हालेलुया। झूठ प्रबोधक तुम्हारे पास आएंगे, बाहर से तो वो एक मेमने के समान होंगे, लेकिन भीतर वो अंदर एक भेड़िए के समान होंगे। लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है? सावध रहना है, और उनके फलों से तुम्हें क्या करना है? उनको पहचान लेना है, आपको जानना है। हालेलुया। 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 क्या आप हालेलुया हम समझ सकते हैं ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा? हमें किसी को पहचानना है, तो हम कैसे पहचानेंगे? એની જોડે વાતો કરીને પછી हालेलुया। 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 अभी मैं ऐसा कहती हूँ कि आप परमेश्वर का ये दास है, ये सही है, परमेश्वर के अंदर चल रहा है ना? ये इसने बताई सारी बात अच्छी है ना? हमने पहले देखा इसने जो इसने बताया वो भी सच था। वो बोला मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रहा था।
तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो मुझे बता रहा है ये सच है या झूठ है? परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग होगे तो हालेलुया। क्या करोगे परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग होगे? हमें वचन ज्यादा पता होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ज्यादा समझ होगी, हाँ, परख होगी। परमेश्वर वो अपने वरदान हमें देगा कि हम उस बातों को समझ सकेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। इस बातों को हम समझ सकेंगे। इसके लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि क्या करोगे तुम? उनके फलों से उनको पहचान जाओगी। अभी ये अच्छा प्रेम दिखा रहा है, ये तो प्रेम की बातें कर रहा है, ये भलाई की बात बता रहा है, मुझसे इतना प्रेम करता है, मुझ पे दया दिखाता है, चीना करता है, चमत्कार करता है, परमेश्वर की बातें बताता है, तो मैं उसके फलों को कैसे समझूंगा या समझूंगी? हालेलुया। 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 सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि इस जगत के अंदर बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं। जो रेस में आप हो उसमें से पीछे हटाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उसके लिए हमें इस वचन को पढ़कर समझना है और उनके फलों को हिसाब से हम उसको पहचान सकते हैं कि ये परमेश्वर का दास है या नहीं है। इसके लिए क्या कहा है? पढ़ना फिर से वही वचन को। તેઓના ફળથી તમે તેઓને ઓળખશો। શું લોકો કાંટાના ઝાડ પરથી દ્રાક્ષા અથવા ઉકરડાની પર અંજીરી તોડે છે? શું કરશે? કાંટાના ઝાડ પરથી દ્રાક્ષ અથવા ઉકાળી પરથી અંજીરી તોડશે, પછી તેમજ દરેક સારું ઝાડ સારા ફળ આપે છે, તે ખરાબ ઝાડ ખરાબ ફળ આપે છે। हालेलुया। 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 अच्छा वाला जो पेड़ होगा वो अच्छा फल देगा, जो अच्छा पेड़ नहीं होगा वो अच्छा फल नहीं देगा। देखिए ऊपर तो हमने पढ़ा वो तो अच्छा वाला बन के आएगा, सुंदर बन के आएगा, तो कैसे पहचानोगे? आदम हवा ने खाया वो भी तो सुंदर खाना, सुंदर ही खाना। उसके फलों से तुम उसको पहचानोगे। वो प्रेम की बात तो करेगा, लेकिन उसके अंदर से वो प्रेम दिखाएगा तो सही, लेकिन उस प्रेम को आप वर्ष नहीं कर पाओगे। आपको पता चलेगा। हालेलुया। उसका प्रेम कैसा है वो आपको पता चलेगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, माड़ूपणું, ભલાઈપણું, વિશ્વાસુ અને નમ્રતાને સંયમ અને संयम, ये पवित्र आत्मा के फल है जो उसके दासों के अंदर हम देखते हैं। हालेलुया। 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 ये भी बहुत सारी बातें बताएंगे जो झूठे लोग हैं, झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे लोग हैं, झूठी बात कहने वाले। और सिर्फ भविष्यवक्ता ही नहीं, बहुत ऐसे लोग भी होंगे, विश्वासु लोग भी होंगे, क्योंकि मैं नहीं चल रहा हूँ परमेश्वर में, मैं परमेश्वर के संग में नहीं हूँ, तो मैं उसको भी क्यों जाने दूं। ऐसे जलेसी रखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे कि जो आपको हटा देंगे, आपको पीछे करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगाएंगे, आपको परमेश्वर के मार्ग में से हटाने के लिए बहुत सारी वो मेहनत करेंगे कि आप हट जाओ। हालेलुया। 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 तो उनके फल ऐसे होंगे, उससे तुम उनको परख लोगे। हालेलुया। क्या करोगे? परख लोगे। यानी जो वो बताता है इस हिसाब से करने वाला वो नहीं होगा, जो वो बोलता है वो करने वाला वो नहीं होगा। उसके
उसके फलों से तुम क्या करोगे, उसको पहचान लोगे। वो नम्रता की बात करेगा लेकिन उसमें नम्रता नहीं होगी। वो संयम की बात करेगा लेकिन उसके अंदर वो संयम नहीं होगी। वो बोलेगा तो जरूर लेकिन वो करने वाला नहीं होगा। हालेलुया। उसके अंदर वो फल ही नहीं दिखेंगे। हालेलुया। वो शांति की बात तो करेगा लेकिन शांति उसके भीतर दिखेगी ही नहीं। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर का जो ज्ञान है ना, ठिकानो याकूब 3 अध्याय। और पढ़ना 15। એક જ્ઞાન ઉપરથી ઉતરે એવું નથી, પણ તે અધિક વિષયના શૈતાની છે। ओके, 13 से पढ़ना, 13 से लेकर 18 तक पढ़ लो। તમારામાં જ્ઞાની તથા સમજુ કોણ છે? તો તે જ્ઞાનથી આવેલી નમ્રતા વડે સદાચરણથી પોતાની કરણીઓ દેખાડે। પણ જો તમારા મનમાં કડવી, અદેખાઈ તથા ચરચી છે, તો તમે સત્યને વિરુદ્ધ થઈને ગર્વ ન કરો અને જૂઠું ન બોલો। એ જ્ઞાન ઉપરથી ઉતરે એવું નથી, પણ તે અહિક વિષય તથા શૈતાની છે। તેમે જે અદેખાઈ તથા ચરચી છે તે ધાંધળ તથા દરેક દુષ્કર્મ છે। પણ જે જ્ઞાન ઉપરથી છે તે પ્રથમ તો નિર્મળ, પછી સલાહ કરાવનાર, નમ્ર, સહેજે સમજે એવું, દયાથી તથા સારા ફળોથી ભરપૂર, નિષ્પક્ષપાત તથા દમરહિત છે। વળી જે સલાહ કરાવનારાઓ શાંતિમાં વાવે છે તેઓ ન્યાયપણું લડે છે। हालेलुया। परमेश्वर का लोग, परमेश्वर के दास, सही में ये परमेश्वर का है, ये सही परमेश्वर की ओर से है। हम कैसे जानेंगे उसको? वो जब सलाह कराएगा। क्या करेगा? सलाह। तो वहां पे क्या होगी? शांति होगी। वहां पे झगड़े नहीं होंगे, ऐसी बातें नहीं होंगी, लेकिन क्या होगी? शांति होगी। नम्र, सजे समझे, दयादी तथा सारा फलती भरपूर, निष्पक्षपात। उसके अंदर पाप नहीं होगा, वो निष्पक्षपात होगा ना। हालेलुया। નિર્મળ, સમજે અને સજે એવું દયાથી અને સારા ફળથી ભરપૂર, हालेलुया। याद रखना, जिसके पास आप जाते हो, जो आपको परमेश्वर की बातें तो बताता है, लेकिन उसके अंदर यदि ये सारी बात है ना, तो वो परमेश्वर का दास नहीं है। हमने पढ़ा यहाँ पे पहले 13 आयत में क्या है? यहाँ पे कड़वी अदेखाई है, चरसी है ना। સત્યની વિરુદ્ધ થઈને ગૌરવ કરે છે, સત્યની વિરુદ્ધ થઈને ગૌરવ કરે છે। આ બધું જે કરે છે એ તો શૈતાનિક છે। શું છે? શૈતાનિક છે। પણ જે ફળ દેવનું છે એ કેવું છે? પણ જે જ્ઞાન ઉપરથી ઉતરે છે, પ્રથમ તો નિર્મળ છે। કેવું છે? નિર્મળ। ये भले एनो वेश केटानो हशे पण ए राक्षसनो हशे, तो ए निर्मळ बात तमने समजण पड़ी जशे। ते निर्मळ, પછી સલાહ કરાવનારું હશે, પછી સજે સમજે એવું દયાથી અને સારા ફળથી ભરપૂર હશે। हालेलुया। इस बातों को हमें समझना है कि ये परमेश्वर का दास है, तो उसके अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। ये परमेश्वर के लोग हैं, तो उनके अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। नहीं यदि उनके बातों को मानते हो तो फिर पीछे क्या है? मृत्यु है। उसके लिए गलाती के अंदर ही यहाँ पे भी लिखा है कि परमेश्वर का जो 5:22 में लिखा है, क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सच्चिता, माणसों भलाईपणું, વિશ્વાસ, નમ્રતા અને સંયમ। એ ફળ આપણે એમની અંદર જોવાના છે। હાલેલુયા। એટલે એ ફળ તરત નથી દેખાતા। हालेलुया। आपको किसी ने बताया? तुरंत नहीं। जब ये प्रबोधक के पास गया, ये दूसरा प्रबोधक, उसने
ने उससे कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, हाँ परमेश्वर ने, वो कल था वहां पे वो झूठ बोल रहा था, लेकिन उसने बात मानी, वो गया, वो अपने मार्ग को भटक कर उसके पास गया ना, उसके घर पर जब उसके घर पर गया, बैठा, खाने के लिए बैठ रहा था, तब परमेश्वर की वाणी फिर से उसकी जो जुठा था उसके पास आई ना, उसके पास आई और बोला परमेश्वर ने कि अभी तू मृत्यु पाएगा, ये मृत्यु पाएगा ना, ये बात परमेश्वर ने उसको दी। तो कितनी देर हो गई, अभी तो मृत्यु आ गई, क्या हो गई, आ गई। तो पहले हमें किसी के ऐसे वैसे के पास जाना नहीं है, पहले हमें वो जो कह रहा है वो उसी हिसाब से चल रहा है, वो जो बोल रहा है उसी हिसाब से वो कर रहा है, वो हमें समझना जरूरी है। हालेलुया। और वो फल जो परमेश्वर ने हमें बताए, वो सारे फल उसके अंदर हमें देखना है। क्या करना है, देखना है, और फिर हमें समझकर वो परमेश्वर का दास है तो जाना है, नहीं है तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर की वाणी हमें जो कहती है उस हिसाब से हमें चलना है। उस परमेश्वर की वाणी हमें जो आज्ञाएं दिया है ना, प्रेम कर, वही आज्ञा परमेश्वर ने मुझसे प्रेम कर, तो वही पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। तो वो हमारे जीवन के अंदर वो पहली आज्ञा हमें याद रखनी। दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से क्या कर, प्रेम करना। जो तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसके अंदर चलता है तो तू आशीष को पाता है। तो आशीष को पाना है तो मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना ही पड़ेगा, वही बात हमें समझना है। हालेलुया। लोग आएंगे आशीष की बातें करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें आशीषित करता है, वो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, फाइनेंस, फिजिशियन आशीषित करता है। हालेलुया। लेकिन लोग आएंगे, वो बताएंगे ऐसे करने से ये आशीष मिल जाएगी, मत जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देता है तुम आज्ञा का पालन करो, आशीष मिल जाएगी। वचन कहता है तुम दो, तुम्हें दिया जाएगा। वचन कहता है उस हिसाब से यदि आप चलोगे आप आशीष को पाओगे। हालेलुया। इसके लिए हमें इसको अच्छे से पढ़कर समझना जरूरी है। हमें अभी बच्चे नहीं होकर चलना है, लेकिन अभी समझने वाले बन जाना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आने वाला निकट, वो हमें लेने आने वाला है, और वो हम रह ना जाए, छोटे बच्चे बनकर यहाँ वहाँ भटक कर रह ना जाए, उसके लिए इसको समझना जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर के विरुद्ध में जो है, हालेलुया, उसको हम उसके फलों से हम पहचान पाएंगे। हालेलुया। फल क्या होंगे, वो जो कहता है वो नहीं करता होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बताएगा तो सही, लेकिन उसको करने वाला नहीं होगा, यानी आज्ञा का पालन वो करने वाला नहीं होगा। और दूसरा कि वो आपको भटकाने वाला होगा। क्या होगा, भटकाने वाला। आप चलते हो, याद रखना, दुखों को लेकर चलते हो, दुखों में होकर चलते हो। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर आपको यहाँ पर भी और वहां पर भी क्या है, बदला है, लेकिन सिर्फ आशीष के ही पीछे भागोगे, आशीष को लेने के ही लिए भागोगे। हालेलुया। तो कोई नहीं बदला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसने मेरे लिए अपने घर को फिर बहनों को, भाइयों को, अपना जो भी है उसको छोड़कर क्या किया है, मेरे पीछे चला है। तो यहाँ पे तो वो स्वर्ग में पाएगा ही, लेकिन वहां पर भी वो पाएगा। हालेलुया। हम पाएंगे, हम क्या करेंगे, पाएंगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ आशीष सिर्फ यही है तो उस बात के पीछे मत जाओ। यदि हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हमें युग को देखना है। हालेलुया। इसको देखना है, और युग को, उसने दुखों के अंदर चला ना, वो उसने परमेश्वर
परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को पकड़ा। हमें अब्राहम को देखना है कि इतने साल वो चला। हमें मूसा को देखना है कि परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने अच्छे से पालन करते हुए वो चले गए। हालेलुया। हमें यहोशुआ को देखना है कि उसने कहा मैं और मेरा घराना तो यहोवा की ही सेवा करेंगे। हालेलुया। वो अच्छे से चला। हालेलुया। हमें देखना है पतरस को, हमें देखना है पौल को, हमें देखना है यूहन्ना को। हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की क्रूस को और रखनी है। हालेलुया। हमें उसी हिसाब से चलना है, उसने बताए हुए रास्ते पे ही चलना है। उसने जो कहा है वही रास्ते को पकड़ कर चलना है। कोई आता है और पीछे मुड़कर वापस ले जाने की बात करता है, उसको छोड़ना और उसको देखकर उसके ही अंदर आप चलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दारू पीने वाला अपने साथ में है, उसको नहीं पिलाएगा, क्या पिलाएगा? वो क्या करेगा? थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले। एक सिगरेट पीने वाला, एक बीड़ी पीने वाला, क्या उसको नहीं पिलाएगा? अरे थोड़ा सा कर ले, हो जाएगा। एक आज्ञा भंग करने वाला क्या दूसरों को आज्ञा भंग नहीं कराएगा? कराएगा ही, वो ही कराएगा, क्योंकि मैं आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, तो ये नहीं करेगा तो चलेगा। आप यदि परमेश्वर के अंदर होकर आप टॉकीज में नहीं जा रहे हो, पिक्चर को नहीं देख रहे हो, तो आपके साथ में कोई ऐसा होगा जो आपको कहेगा ही, करवाएगा ही कि कर ले मेरे साथ, तो ये मैं करता हूँ, अच्छा है, ये है, वो यही कराएगा। यानी आप उस क्रूस के ओर, उस दुखे के ओर और उस दुखों को उठाते हुए, उस कष्टों को उठाते हुए चलोगे। उसको तो मौसम, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, खाना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए, सिलाई चाहिए, तो वो उस हिसाब चलने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए भटकाने वाले तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग। हाँ, वो चाहे प्रबोधक होंगे, वो चाहे आपके आसपास में रहने वाले होंगे या फिर विश्वास होंगे, कोई भी होगा, आपको परमेश्वर के अंदर यदि आप चल रहे हो तो आपको भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। आपको शायद ये भी बता देंगे कि क्या आप चुने हुए हो, आपको पता है मैं चुना हुआ हूँ या नहीं, बैठ जाओगे, मत बैठो ना। परमेश्वर का वचन कहता है, तूने अपने पापों को त्याग कर मेरे पीछे होया है, मैंने तुझे शुद्ध किया है, अभी तू मेरे मार्ग में चल रहा है, मैंने तुझे बेटा बना लिया है, बेटी बना लिया है, चलना। इसको मानकर चलते हैं वापस। हम जितनी बार किसी का मैसेज सुनते हैं, उतनी बार हम ऐसे कहते हैं, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, और परमेश्वर का काम करना छोड़कर पाप को पकड़कर ऐसे बैठते हैं। मैं चुना हुआ नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, उसको पकड़कर हम बैठे रहते हैं। मैं आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, वही बात को पकड़कर हम चलते हैं। आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। भटकाने वाले बहुत सारे होंगे, आपको परमेश्वर के मार्ग से हटाने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन आप ऐसे दौड़ो को ही नाम आपको मिले। हालेलुया। जब इसको भी राजा दे रहा था, उस इनाम को उसको नहीं चाहिए था, उसने उसको ठुकरा दिया। यदि इस जगत का ऐसा कोई इनाम के लिए आप दौड़ रहे हो, तो मैं कहती हूँ मत दौड़ो, लेकिन उस इनाम के लिए दौड़ो जो आपको अनंत जीवन के लिए मिलने वाला है। हालेलुया। उसके लिए आप दौड़ो, उसके लिए आप दुखों को उठाओ, उसके लिए आप निंदों को त्यागो, उसके लिए आप घुटनों के बल झुको, उसके लिए आप प्रार्थनाएं करो, उसके लिए आप नार को खाओ, उसके लिए आप पीड़ा को उठाओ, उसके लिए आप सब कुछ को छोड़कर उसके पीछे हो लो। हालेलुया। तो बहुत बड़ी बात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हर एक दास ने आशीष को तो पाया, लेकिन वो पीड़ा में वो कर चले थे। हालेलुया। पौल को देख लो, पतरस को देख लो, यूहन्ना को देख लो, हर एक परमेश्वर के दास को, स्टेफन को देख लो। हालेलुया। हर एक दास को आप देखो परमेश्वर के, जिन्होंने दुखों को सहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
उसमें होकर वो चले हैं, उसमें होकर वो चले हैं। मार को सहा है, हाँ, जुदाई को सहा है, अपमान को सहा है। उन्होंने सारी बातों को सहकर परमेश्वर के अंदर दौड़ को पूरी किया है। और कहता है मैंने दौड़ पूरी किया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना भी दौड़ा, परमेश्वर ने उनको प्रकटीकरण दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन यदि इस जगत में हम अभी जो दौड़ रहे हैं, अभी की दौड़ में तो बहुत सारे लोग आएंगे जो परमेश्वर के मार्ग से बुला देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे? बुला देंगे। उससे हमें सावधान रहना है। किससे? उससे हमें सावधान रहना है, जो बुला देने वाले हैं उससे। और उसके फलूस को हमें याद रखना है कि इसके अंदर एक फल नहीं दिखेंगे परमेश्वर के। उसके फलों से आप उनको पहचान लोगे। और एक फल यदि उसके जीवन में नहीं दिखते हैं तो आप उसके दूर हो जाओ। क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे ये परमेश्वर ने जिस हिसाब से इस प्रबोधक को कहा था वो चला या और फिर उसको भटका दिया, वो मृत्यु पाया। ऐसे ही हमें भी भटकाने वाले बहुत सारे लोग हैं, उससे हमें समझना है। क्या करना है? समझना है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हमें सावधान रहना है। हालेलुया। क्या करना है? सावधान रहना है। कोई आकर कहता है कि वचन को फॉलो मत करो, आज्ञा का पालन मत करो, हाँ, चर्च में मत जाओ, प्रार्थनाएं मत करो, मत झुको, मत फास्टिंग करो, हालेलुया, हालेलुया। मत ये करो। नहीं मानना है। क्या करना है? नहीं मानना है। इसको पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या कहता है? ये क्या बताता है? ये क्या समझाता है? इसको पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। इस हिसाब से जियो। क्या करो? इस हिसाब से जियो। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर के दास बहुत है। हालेलुया। अभिषेक दास भी बहुत है जो सच्चाई से परमेश्वर के अंदर चलते हैं। परमेश्वर उनको भी भेदों को बताता है। हालेलुया। हालेलुया। इसको मैं मानती हूँ। हालेलुया। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हम चलते हैं तो हमें भटकाने वाले भी हैं। हालेलुया। हालेलुया। भटकाने भी वाले हैं तो हमें उनको मानना नहीं है। हालेलुया। हम चल रहे हैं ना परमेश्वर के अंदर, हम चल रहे हैं तो हमें चलना है। पता है, एक बहुत अच्छा सा लड़का था, पढ़ाई में स्कॉलर था और उसको हमेशा फर्स्ट लाना था। उसको फर्स्ट ही चाहिए। क्या चाहिए? फर्स्ट। तो कॉलेज के अंदर हॉस्टल थी और हॉस्टल के अंदर बहुत सारे लड़के रह रहे थे, बहुत सारे। और सब लोग पढ़ाई के जब एग्जाम आती है तो सब क्या करते हैं? और रात अच्छे से स्टडी करना, पूरे साल नहीं करते हैं। लेकिन क्या करेंगे? कल एग्जाम है तो आज सब लोग स्टडी करने बैठेंगे। तो वो जो स्कॉलर था ना, उसको पता था ये सारे लोगों ने, मैंने तो पूरी साल मेहनत किया है, लेकिन इन सारे लोगों ने तो पूरी साल मस्ती किया, मजा किया और अभी क्या करेंगे? अभी पढ़ने बैठेंगे और मुझसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाएंगे। वो अच्छे से स्कॉलर था, बहुत अच्छा, उसके पास नॉलेज बहुत था, वो तेज था, पढ़ाई में अच्छा, आगे सबसे आगे था। लेकिन उसको और आगे जाना था तो उसके लिए उसको जेलसी थी। ये लोग आगे आ जाएंगे, ये उससे आगे आ जाएंगे। तो उसने क्या किया पता है? एक ऐसा आता है ना कुछ जिसमें बहुत सारे पोस्टर आते हैं, उस टॉपिक को कुछ कहते हैं, ऐसी चौपड़ी आती है मैगजीन, है ना? उसमें बहुत सारे पोस्टर आते हैं। उसमें बहुत सारी लड़कियों के पोस्टर थे और वो जो रहता था ना, वहाँ पे सारे लड़के थे। तो उसने क्या किया? अलग अलग लड़की के जो पोस्टर थे ना, वो ऐसी बड़ी सारी मैगजीन लिया और लेकर रात को जब लोग पढ़ रहे थे ना तो सबके दरवाजे में डाल कर वो आ गया। तो जितने भी लड़के थे ना, वो लोग वो मैगजीन देखने में पड़ गए और मैगजीन देखते देखते वहां पे सो गए। और वो जो लड़का था ना,
उसने उसे अच्छे से पढ़ाई किया। क्या किया? पढ़ाई किया, फर्स्ट आया। क्या आया? फर्स्ट आया। लेकिन वो अपनी मेहनत से आया नहीं आया, उसने क्या किया? भटका दिया लोगों को। क्या किया? भटका दिया। वैसे ही परमेश्वर के अंदर है, वैसे ही इस जगत में तो है ही। जगत के अंदर आप परमेश्वर में चल रहे हो तो जगत में जो आज्ञा भंग कर चल रहे हैं, वो क्या आज्ञा पालन करने वालों को, हाँ परमेश्वर के पास जाने वालों को, फर्स्ट जाने वालों को क्या खींचेंगे? नहीं खींचेंगे। क्या करेंगे? खींचेंगे। उन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया, आप भी मत करो। बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और क्या करें? वो फर्स्ट तो आ गया लेकिन दूसरों को तो उसने भटका दिया। वैसे ही ऐसे जीवन में हम उधर परमेश्वर में चल रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में रहने वाले, हाँ हमारे साथ खाने पीने वाले भी हमें भटका देते हैं। क्या करते हैं? भटका देते हैं। सावध हो जाओ। क्या हो जाओ? सावध हो जाओ। आज हमने सीखा है कि हमें बहुत ऐसे लोगों से, सिर्फ हमने प्रबोधक की बात देखी कि ये झूठा प्रबोधक था, है ना, उसकी बात देखी, लेकिन उसके अलावा बहुत लोगों से ना, बहुत ऐसे लोगों से जो हमारे साथ में भी है, हमारे पिता ही रहते हैं, हमें दिखते भी है, हमें मिलते भी है, ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है। क्या रहना है? सावधान रहना है। इसमें क्या है, इतने करने में क्या है, ऐसा करने में क्या है? बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे, लेकिन याद रखना यदि हम परमेश्वर का जो प्रबोधक है उसको यदि हमें जानना है तो उसमें फल से हम उसको जान लेंगे और दूसरों की बातों में हमें आना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमें इसको फॉलो करना है, इसके अंदर चलना है, इसको ही मानना है। हालेलुया। यही यहोवा की वाणी है। हालेलुया। यही वाणी है, उसको लेकर हमें चलना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उस हिसाब से हमें चलना है। हालेलुया। 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 उसके लिए पौलुस कहता है कि इनाम तुम्हें मिले, ऐसे तुम दौड़ो। हालेलुया। 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 किसको मिले? मुझे मिले, ऐसे मुझे दौड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। तो दौड़ने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? इस मसीह का क्रूस उठाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए क्रूस उठाकर मुझे चलना है, मुझे क्या करना है? खुद का नकार कर। हालेलुया। चलना है, खुद का नकार कर चलना है। यदि खुद का नकार करूंगा, हालेलुया, और क्रूस को उठाकर मैं उस दौड़ के अंदर, उस रेस के अंदर चलूंगा, हालेलुया, विजय मेरी है। क्या है? विजय मेरी है, जय मेरी है। हालेलुया। उसके लिए हमने जब पढ़ा था गुरुवार को ना, क्या है? जय मेरी है। किसने मुझे जय दिलाया है? परमेश्वर ने मुझे विजय दिलाता है। हाँ, उसके अंदर जय मेरी है, उसके अंदर विजय मेरी है। मृत्यु मुझे छुपाएगी नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मृत्यु को भी हरा दिया। हालेलुया। वो जिंदा हुआ है, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो याद रखना है, पहचानने के लिए फल है, हमें सावधान रहना है, बहुत सारे लोगों से अलग रहना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, अच्छे से परमेश्वर के अंदर चलना है। मार्ग को भटकाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, हमें भटकना नहीं है। लोग की वाइफ में सिर्फ पीछे ही होगा। वहां पे बहुत हम होते हैं ना, खाट का मामला, वहां पे आग जब गिरी ना तो सब जलकर राख हो गया था। क्या हो गया था? राख। यहोवा गंधक तथा आग बरसाया। गंधक ना, वो जो जलाता है वो सारा, तो वो भी वो क्या हो गई? खंभा हो गई। क्या हो गई? खंभा हो गई। वो जल गई, वो खंभा हो गई। पीछे मत मुड़ना। हालेलुया। आगे चलो, आगे की ओर दौड़ो।
हालेलुया। आगे ऐसे दौड़ो कि उसको मुझे पा लेना है, पा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आगे की ओर देखा। पतरस उसने पहले नकार कर दिया, हालेलुया, लेकिन उसको समझ में आया कि मैं परमेश्वर का ही हूँ, हालेलुया। उसने प्रायश्चित करने के बाद परमेश्वर के अंदर दुख को उठाकर वो वही दौड़ के अंदर वो दौड़ा, वो मृत्यु को पाया, हालेलुया। दुखों के अंदर, पीड़ा के अंदर, जेल के अंदर रहा। यदि हमें जेल के अंदर जाना चाहिए तो हम परमेश्वर से कहेंगे, हाँ परमेश्वर जेल के अंदर हमें लेकर आया, हमें इतनी सारी बड़ी बड़ी सेवाएं किया, इतना किया, तू जेल में लेकर आया। हम परमेश्वर को ऐसा नहीं रहा, उसको जेल में रहा, हाँ कौन रहा और जेल में? और परमेश्वर के दास, हालेलुया। परमेश्वर के बहुत ऐसे दास जो जेल में रहे, हाँ यूहन्ना ने भी वहां पे रहकर लिखा, हाँ आत्मा ने कलीसिया कहे छे ने, हाँ कलीसिया ने आत्मा कहे छे, उसकी सारी बातें उस परमेश्वर ने उनको वहां पे बिताई, उन्होंने लिखा, हालेलुया। याद रखो कि मैं चल रहा हूँ, मुझे पीछे हटाने के लिए कोई आता है उसकी मुझे सुनना नहीं है, मुझे पीछे जाना नहीं, मुझे आगे की ओर दौड़ना है और ऐसे दौड़ना है कि मैं उस इनाम को पा लूं। दुख आएगी, पीड़ा आएगी, तकलीफ आएगी, हाँ नींद को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप का नकार करने पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को छोड़कर मुझे परमेश्वर की ओर मुझे दौड़ना है। हाँ मैं परमेश्वर में चलूंगा, सिर्फ मुझे फौरी में ही पढ़ना मिलेगा नहीं, हालेलुया। चल चल कर भी किया है मुसाफिरी, हालेलुया। साइकिल पर भी मुसाफिरी किया है, हालेलुया। करो, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता ही है, यदि तुम दुखों में होकर चलते हो तो यहाँ पर तो 100 गुना पाओगे, वहां पर भी तुम पाओगे, पाओगे, जासूसों को पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन, हालेलुया, क्या है? हालेलुया, उसका वचन सत्य है। क्या है? सत्य है। और उसका वचन जो भी कहता है वो पूरा हुए बिना फुगत वापस आता नहीं है। जैसे जब बारिश गिरती है तो क्या होता है, जमीन में से अन्न उगता है, हालेलुया। अभी सब लोग क्या 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 बोएंगे? चावल, हाँ चावल का बीज बोएंगे वो लोग अच्छे से, और क्या होगी? फसल होगी, अच्छी वाली होगी। बरसात भी गिरती है तो क्या होता है? अन्न होता है, उगता है। तो मेरा परमेश्वर का वचन है जो पूरे हुए बिना वापस जाता नहीं है, मेरे परमेश्वर का वचन है। उसके लिए परमेश्वर कहता है लोगों से, ऐसे झूठे लोगों से भी और आसपास के भी झूठे लोग हैं, उससे भी तुम सावधान हो जाओ और अपनी दौड़ को दौड़ते रहो और वही इनाम को देखकर चलो, उसके क्रूस को देखकर चलो कि तुम उसको पा लो। हटाने वाले आके उनको क्या करो? छोड़ दो, हालेलुया। आगे का समय हम परमेश्वर के दास को देते हैं।